So in this particular figure, what will be there? So I consider a beam whose length is d of x. So this is the beam whose length is d of x, and this hidden line it represent centroidal axis. Okay. In right hands in this is my left hand. Oh, in this right hand side, this particular figure denote our cross sectional area of a beam. So for simplicity, I have taken a beam which is symmetrical about y-axis, and it is a rectangular shape. For simplicity, I have taken it is symmetrical about y-axis and it has a rectangular shape. This rectangular cross section have height of h and width of b. So G is the centroid of this cross section area. So this hidden line is nothing. If you join the centroid of each section of a beam along the entire length, so this hidden line will be the line when you join the centroid of each cross section area. So this hidden line is called as a centroidal axis. So G is the centroid of this particular section. So I have defined a two axis. One is vertical direction is y, and out of the plane this in this particular figure this z vector is out of the plane. So this z is out of the this particular screen of the plane. So this is nomenclature for defining the axis, y axis and z axis. So this is the cross sectional view. So here height h here is the height of a beam, b is the width of a beam, and dx is the length of a beam. So once you apply a bending moment, we will see what will be happen to this particular beam. So in right hand side, I have applied a bending moment m on left side and right side. So after application of bending moment, this particular straight beam it deflect in certain curvature. It will occupy this particular curvature of this particular beam. So previously it is a straight, and after application of a bending moment, it will turn in the shape of a certain curvature. It will deform and form a certain curved shape. Now let us look. Suppose this is my cross section area. Suppose this particular cross section and this particular cross section it will turn to form a. So this particular previously it is a vertical in shape. Previously it is a vertical in shape, and this is also vertical in shape. So it will turn to make an angle of a d theta. So so this red portion previously it is straight. Now it will form a curve with a circular arc. This is my circular arc. Similarly, in this topmost fiber, it will deform in this particular shape. So what will we do in this particular driving the differential equation? So from centroidal axis at a distance of y, we take a fiber which is called as AB. So previously length of this AB is d of x. It is the length of this particular beam. So we take any fiber AB from centroidal axis. The position of this fiber is y. Previously it is length or is AB. After a deformation, this A it will occupy a position of A dash, and B it will occupy a position of B dash. So you have to calculate A dash and B dash is particular length, final length. This you have to calculate arc length of A dash and B dash. So this is the procedure to solve this particular. So first this original length of this fiber is given as AB. Deformed length is given as A dash B dash. So let us first calculate deformed length A dash and B dash. Then we will see what we will do. Okay. This is my point O. This is my point O. So this particular point O, it lies on neutral. It lies on centroidal axis. From O to C, distance between O to C is defined as capital R. R is the radius of curvature of a neutral axis or centroidal axis. Okay. So
this you should note that the length of a neutral axis remain constant after bending. So it means that previously O and the length of O and O dash is d of x. After deformation, it will occupy a curve. So this is the arc length O and O dash. Now length of this particular O and O dash is again, it doesn't change, it remains constant. That this length should be d of x. Now take this particular, if you know this particular, you can apply theta is equal to L upon R. This is our angle of a theta and arc is O and O dash. So arc theta is equal to theta is equal to L upon R. So instead of L, this is arc O and O dash divided by radius of a curvature. So radius of this particular curve, it is called as capital R. So this is my OC is my radius of a curvature. So d theta is called as dx upon R. So this is the relation d theta is equal to dx upon R. Similarly, once you calculate d theta, okay. Now take the fiber of A dash and B dash. So it is a distance of Y dash. So now this particular A dash and B dash, it again is subtended at angle of a d theta on this particular center. So we can say that d theta is also equal to arc length A dash and B dash divided by the distance between A dash and C. Again, this is my length and this is my radius of a curvature for a fiber of A dash and B dash. This A dash C is my radius of curvature for this particular arc A dash and B. So instead of arc length, we can say that this particular length A dash C dash is how much? So from O to C, distance is capital R. And this particular distance is y. So distance between A dash to C is equal to R minus y. So A dash and C dash is a distance which it is R minus y. So what we will do, arc length A dash and V dash, this particular arc length you calculate this particular arc length. So this particular arc length is equal to d theta multiplied by A dash and C, this particular radius. So this is d theta into A dash C. So instead of A dash C, you can write R minus Y. So here instead of A dash C, I have written R minus Y. Instead of d theta, I have substituted dx upon capital R. So instead of dx, it is equal to dx upon capital R. So arc A dash and B dash is equal to, you just open it this particular number. So R, it will cancel out. It will be occur dx minus y upon R into d of x. So this is arc length A dash and B dash. Now original AB in previous section, this AB is the original length of this particular fiber. So AB is called as the original length of the fiber. So AB is equal to d of x. It is equal, so this AB is equal to length of this particular beam. So original length of this particular beam is given as d of x. So this is d of x. So as we know, strain is equal to change in length divided by original length. So definition of strain is equal to change in length divided by original length. So we have to calculate the change in length in the fiber AB. So this is equal to final length is arc A dash and B and original length is AB divided by AB. Now instead of arc length A dash and B dash, you can substitute dx minus y upon R into d of x. So instead of arc A dash B dash, you substitute dx minus y upon R into dx. Or instead of AB, you can substitute d of x. So instead of AB, you substitute d of x. So this is d of x. So this d of x and this d of x, it will cancel out. And this d of x, it will cancel with this denominator, it will cancel out with numerator. So resulting equation, strain of this particular fiber AB is equal to minus y upon R. So it means that y is a positive number, R is a positive number. So negative term is mean that the length of this particular fiber AB length is decreased. So negative strain, it means that
there is a change, there is a decrease in the length of the fiber. So this negative sign indicated there is a decrease in the length of this particular fiber. So you can apply Hooke's law. So Hooke's law state that stress is equal to Young's modulus into strain. So instead of a strain, you can substitute minus y upon r. So this is, instead of a strain, you substitute minus y upon r. So you rearrange this particular expression. So stress is represented by this particular sigma. So if you rearrange this particular expression, you will be get sigma upon y is equal to minus E upon r. So this is your one particular expression of sigma upon y is equal to minus E upon r. So this is one way to derive. There is a second part also to for flexural formula. Okay. Now we will go for the second formula. How the second formula m upon I is equal to minus E upon how this particular expression will be divided. How it will be evaluated. So for finding this particular expression, what you need to do, I have draw this particular cross section area. So in this particular cross section area, you choose elemental strip area. This is the shaded region. For this shaded region, you calculate the what is the force is acting or act uh, on this particular shaded region. So normal force act at this particular shaded region. For this particular shaded region, you have to calculate normal force act on this particular shaded region. So as we know, normal force is equal to stress multiplied by area. So expression of a stress we can calculate from expression of a stress is given upon minus E upon R into Y. So instead of a stress, you can substitute minus E upon R into Y. And instead of area, so you have to calculate the area of this particular shaded region. So area of this particular shaded region is equal to, so if this cross section has a width of V and his length is, this particular length is d of y. So area of this shaded region is equal to B into dy. So this is the force is acting on this elemental strip, and this force is normal to this particular plane. So if this plane is y and z direction, so force acting on this particular plane, it is acting along the x-axis, and it is acting inward to the plane. So this particular force is perpendicular to this cross section area. So direction of this particular force is inside to the plane. It means that it is along the x-axis, minus x-axis, you can say that. Okay, so you have to calculate after that, due to this particular force, you have to calculate moment about z-axis. So this force is acting at this particular strip. On this particular strip, you have to calculate, for this particular force, you have to calculate moment about z-axis. So moment about z-axis is equal to force acting at this particular shaded region multiplied by perpendicular distance. So perpendicular distance is y. So this is my force multiplied by perpendicular distance is y. So if you rearrange this particular expression, y into y, it will be occur y square into y square b into d of y. B into d of y is equal to area of this particular elemental striped area. So this is my shaded area. B into dy is my area of this shaded region. So what I can say that as integration y square into b into dy integration of this particular term is nothing. It is called as area moment of inertia about the z-axis. So this in particular integration can be represented by izz. So instead of this particular expression, you substitute izz. So after that, you will get m divided by iz is equal to minus E upon r. So this is my second expression. So you get this particular sigma upon y is equal to minus E upon r. M upon I is equal to minus E upon r. If you get these two equations, you will get sigma upon y is equal to m upon I, that is equal to minus E upon r. So this is the expression for the derivation of the flexural formula. ठीक है, तो ये डेरिवेशन है. इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है डेरिवेशन में तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे. सर हाँ बताओ.
सर जो ये फिगर ड्रा है सर, ये जो बीम का क्रॉस सेक्शन पे उस पे हम लोग मतलब कर रहे हैं जो भी कैलकुलेशन और ये सब हो रहा है। हाँ, ये वाला पोर्शन क्या है कि जैसे बीम पर तुमने ये स्ट्रेस निकाला, जैसे ये तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे तुम्हें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, तो इस क्रॉस सेक्शन पर तुम्हें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो उस स्ट्रेस के कारण तुम्हारा फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स के कारण मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो ये क्रॉस सेक्शन पर तुम्हारा ये पूरा कैलकुलेशन क्रॉस सेक्शन पर है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। केस वन लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बीम। तो हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिड पॉइंट पे एक तुम्हारा पॉइंट लोड है। तो इस प्रॉब्लम को दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड और सेकंड है एरिया मोमेंट मेथड। तो इस क्लास में हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया मोमेंट मेथड पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें डिफ्लेक्शन कर्व और स्लोप कर्व फाइंड आउट करना है यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट तुम्हें फाइंड आउट करना है। इस पार्ट ए में तुमने डिफ्लेक्शन कर्व तुमने फाइंड आउट किया, इस डिफ्लेक्शन कर्व से तुम्हें मिड पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन एट दिस मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके बाद तुमने स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट किया, स्लोप इक्वेशन को यूज करके तुम पार्ट सी में हिंज पॉइंट पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो ये तीन पार्ट हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि तुम्हें सबसे पहले अगर डिफ्लेक्शन कर्व चाहिए तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जैसे बीम है तो बीम में हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे तुम्हें रिएक्शन सपोर्ट फाइंड आउट करना है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में हिंज सपोर्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं आर ए, और रोलर सपोर्ट पर तुम्हारा वर्टिकल फोर्स लगता है आर बी। तो तुम्हें सबसे पहले आर ए एंड आर बी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इस स्टेप को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला क्या है कि फोर्स इक्विलिब्रियम अलोंग द वाई एक्सिस, इसका अर्थ है समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, इट मींस दैट आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कैपिटल पी। तो समेशन फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन शुड इक्वल टू 0, ये तुम्हारा पर्टिकुलर वन इक्वेशन है। उसके बाद तुम्हें जैसे ये तुम्हारा पॉइंट ए है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशली कैपिटल बी की जगह हम लोग कैपिटल ए यूज करना था। So take the bending moment about this particular point O should equal to 0. So find the moment due to P about point A. It will be P into L upon T. सर आवाज धीमे आ रही है सर। Okay. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ये जैसे पॉइंट बी नहीं होना चाहिए, पॉइंट ए होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में मैंने पॉइंट ए के अबाउट मैंने बेंडिंग मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए शुड इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए पर तुम्हें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट शुड इक्वल टू 0। तो P के कारण तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट होगा P मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L अपॉन 2। सो इस फोर्स के कारण A के अबाउट बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन, इसलिए यू से टॉर्क ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। सो उसी के रिएक्शन सपोर्ट के कारण इस पॉइंट पर मोमेंट का डायरेक्शन जो है तुम्हारा फोर्स है आर बी, और लेंथ इसका लाइन ऑफ एक्शन, और इस पॉइंट से इसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा एल है। तो आरबी के कारण पॉइंट ए पर तुम्हारा मोमेंट का वैल्यू होगा आरबी इंटू एल, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो तुम्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हें एक साइन को तुम्हें पॉजिटिव मानना है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव माना है, तो उससे तुम्हें आरबी का वैल्यू तुम्हारा पी अपॉन 2 आ जाता है। तो उसे आरबी की जगह पर पी अपॉन 2 को अगर तुम लोग इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो रिएक्शन एट पॉइंट ए तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग रिएक्शन सपोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इससे आर ए और आरबी तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में तुम्हें करना क्या है कि फाइंड द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट एनी सेक्शन एक्स फ्रॉम ए। तो पॉइंट ए से
एक्स डिस्टेंस पर तुम्हें इस क्रॉस सेक्शन पर तुम्हें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उसका सबसे बेसिक स्टेप क्या है, तुम एक्स डिस्टेंस पर तुम्हें बेंडिंग मोमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो तुम्हें एक क्रॉस सेक्शन तुम कट करो। इस क्रॉस सेक्शन को कट करने से ये बीम जो है दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो तुम या तो पार्ट 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो पार्ट 2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों ही तुम्हारे पास फिजिबल है कि किसी भी एक का तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पार्ट 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पार्ट 1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो तुम्हारे पॉइंट ए पर फोर्स लगता है P/2। ये तुम्हारा रिएक्शन सपोर्ट है, इसे तुम लोग शो कर दो। जहां तुमने क्रॉस सेक्शन काटा है, जो क्रॉस सेक्शन को काटोगे तो उस क्रॉस सेक्शन को ये फोर्स जो है तुम्हारा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये पार्ट 2 जो है पार्ट 1 पर एक शियर फोर्स एक्ट करेगा जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ये इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक शियर फोर्स V अप्लाई होगा और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, ताकि ये दोनों ही फोर्स P/2 और शियर फोर्स, दोनों ही फोर्स जो होता है, इन दोनों फोर्स का समेशन जो है वो 0। तो अगर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी इसका समेशन जो है 0 होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड जो होता है अगेन V=P/2। तो जहां पर तुमने अगर सेक्शन काटा है तो उस सेक्शन पर तुम्हारा एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है कैपिटल M। तो तुम्हें इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, तुम्हें स्पेशली बेंडिंग मोमेंट कैपिटल M का वैल्यू तुम्हें चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन पर एक पॉइंट O लेते हैं। ये O पॉइंट तुम्हारा स्पेशली सेंट्रॉइड को तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है। तो ये O पॉइंट जो है इस क्रॉस सेक्शन का तुम्हारा सेंट्रॉइड है। तो जैसे पिछले वाली फिगर में हम लोग, जैसे ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है तो इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड G है, तो ये G जो पॉइंट है सेंट्रॉइड है। तो उसी हिसाब से हम लोग जहाँ सेक्शन काटे हैं, ये डॉटेड लाइन नथिंग, डॉटेड पॉइंट जो है वो तुम्हारा G को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग उसी पॉइंट पर को हम लोग कंसीडर किए। अब तुम्हें पॉइंट, इस डॉटेड पॉइंट्स के अबाउट समेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस शुड इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के अबाउट तुम्हें समेशन मोमेंट अबाउट ऑल फोर्सेस शुड इक्वल टू 0। तो तुम्हें P/2 के कारण इस डॉटेड पॉइंट के अबाउट तुम्हें मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पर मोमेंट होगा, ये फोर्स है P/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। तो P/2 इंटू एक्स, तो ये इस फोर्स के कारण तुम्हारा मोमेंट होता है P/2 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि शियर फोर्स जो होता है इस सेक्शन से तुम्हारा पास करता है, तो क्योंकि इस पॉइंट से पास करता है तो शियर फोर्स के कारण इस पॉइंट पर मोमेंट जो होगा वो तुम्हारा 0 होगा। अब इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पर मोमेंट जो है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज मोमेंट है। हम इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हो गया, तो इस सेक्शन पे एक बेंडिंग मोमेंट M एक्ट कर रहा है, तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और इसके कारण क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो ये आपस में जो होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज बैलेंस टू क्लॉकवाइज मोमेंट, सो M=P/2। सो इससे तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे जब x जो है 0 से लेके L/2 के बीच में लाई करता है। तो ये पहला स्टेप है, जब सेक्शन जो है 0 से लेके L/2 के बीच में रहेगा तो ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x जो है तुम्हारा L/2 से ग्रेटर होगा और L के बीच में होगा। ये सेक्शन जो है x इज ग्रेटर देन L/2 एंड इज लेस देन L। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगेन तुम्हें जिस सेक्शन पर तुम्हें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो वो सेक्शन लो। जब वो सेक्शन लोगे तो इस बीम को तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये पार्ट तुम्हारा 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सिंपल, मेरे लिए सिंपल क्या है, पार्ट 2 का फ्री बॉडी डायग्राम यूज करें। तो हम लोग, मैं सेकेंड वाले पार्ट, इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यूज किया। तो इस वाले पार्ट में तुम्हारा एक बी पॉइंट पर रिएक्शन सपोर्ट है P/2। तो बी पॉइंट पर हम लोग रिएक्शन सपोर्ट शो किए हैं P/2, ये तुम्हारा रिएक्शन सपोर्ट है। ठीक है, अब जहां सेक्शन काटोगे, जिस सेक्शन पर भी काटोगे, एक शियर फोर्स तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा और एक बेंडिंग मोमेंट तुम्हें अप्लाई करना होगा। ये बेंडिंग मोमेंट तुम्हें अप्लाई करना।
अब अगेन तुम्हें इस बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन तुम्हारा सेम प्रोसीजर है। इस सेक्शन पर एक पॉइंट ओ लो। अगेन दिस पर्टिकुलर ओ पॉइंट इज नथिंग, इट इज सेंट्रॉइड ऑफ योर सेक्शन। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ ऑल ड्यू टू फोर्सेज शुड मोमेंट ड्यू टू ऑल दिस फोर्सेज अबाउट ओ शुड इक्वल टू 0, क्योंकि शियर फोर्स जो है वो पॉइंट ओ से पास कर रहा है, इसलिए इस फोर्स के कारण ओ के अबाउट मोमेंट 0 होगा। अब P/2 के कारण O के अबाउट मोमेंट होगा P/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स, सो P/2 इंटू L माइनस एक्स। तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पर मोमेंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज शो किया, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वेट करेगा, तो दैट m इक्वल टू P/2 इंटू L माइनस एक्स। सो एक्स का लिमिट है L/2 से लेके L के बीच में वेरी करता है। तो ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, तुम्हें ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये सेकंड स्टेप तो होता है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को, ये तुम्हारा बेंडिंग एक्सप्रेशन को तुम लोग x0 से L/2 के बीच में ये एक्सप्रेशन लिख लो, L/2 से लेके L के बीच में ये एक्सप्रेशन लो। इससे हम कर्व में अगर फिगर में ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा जैसे बीम है, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। तो ए से सी के बीच में ये लाइन जो है, ये पर्टिकुलर लाइन जो है P/2 इंटू एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और सी से बी के बीच में ये पर्टिकुलर लाइन जो है तुम्हारा P/2 इंटू एल माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हें एट पॉइंट, जिस पॉइंट पर तुम्हारा फोर्स लगता है उस पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो x के जगह पर तुम लोग L/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो L/2 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आता है PL/4। सो C पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आता है PL/4। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हारा इस प्रॉब्लम का है, ठीक है। थर्ड स्टेप अब हम लोग जाते हैं, थर्ड स्टेप में तुम्हें करना क्या है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूज फ्लेक्सुलर फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तुम्हें फ्लेक्सुलर फार्मूला को यूज करना होगा ताकि तुम्हें डिफ्लेक्शन कर्व और स्लोप का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्लेक्सुलर फार्मूला का यूज होता है m/r = E/r। 1/r के जगह पर d2y/dx² हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर तुम्हें रीअरेंज करना है तो e को तुम लोग न्यूमरेटर में लाते हो, तो m/ei = d2y/dx²। हम लोग एज्यूम करते हैं ei इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, ये मेरा एजम्पशन है। हम लोग एक पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड वे में हम लोग लेते हैं e/i = कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ ए बीम, इसलिए लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन में हम लोग ei जो है तुम्हारा बाहर तुम्हारा आ जाए, ठीक है। तो ये एजम्पशन है, तो प्रॉब्लम में मोस्टली ei जो होता है कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो प्रॉब्लम है जिस तरह के, अगर तुम्हारा अगर क्रॉस सेक्शन तुम्हारा यूनिफॉर्म है तो उसमें आई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शन में तुम्हारा मटेरियल जो है सेम मटेरियल का बना हुआ है तो ई जो है कांस्टेंट है, तो उस केस में ई इंटू आई जो है कांस्टेंट होता है। अब तुम्हें करना क्या है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन तुमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है m/ei, इस बेंडिंग तुम्हें रीजन लेना है x लाई बिटवीन 0 टू L/2 के बीच में। बेंडिंग मोमेंट का m का एक्सप्रेशन 0 से लेके L/2 के बीच में P/2 इंटू एक्स है। तो m के जगह पर, दिस पर्टिकुलर m के जगह पर P/2 इंटू एक्स तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा ये फॉर्मेट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट, इस एक्सप्रेशन को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू हैव टू इंटीग्रेट वन मोर टाइम। अगर तुम इस एक्सप्रेशन को अगर एक बार इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें स्लोप का इक्वेशन आता है। तो हम लोग d2y/dx² को हम लोग लिख सकते हैं d इंटू dy/dx डिवाइडेड बाई d ऑफ x। सो ये पर्टिकुलर d2y/dx को हम लोग पर्टिकुलर इस टर्म से लिख सकते हैं। इससे हमें dx के अबाउट इंटीग्रेट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय dx एंड यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन। सिमिलरली इस फंक्शन को अगर तुम्हें इंटीग्रेट dx के टर्म में करना है तो ये इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को अगर परफॉर्म करते हैं तो इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आता है dy/d ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन करते हो तो p/2ei x² by 2
प्लस क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है तुम्हारा इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल के कारण हम लोग को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा ए। तो ए तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा स्लोप इक्वेशन है। ए तुम्हारा अननोन है, ए को तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे ए फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद हम लोग, हाँ ठीक। अब तुम्हारा जब स्लोप इक्वेशन आ जाता है तो तुम्हें इस एक्सप्रेशन को तुम्हें एक बार अगेन यू हैव टू इंटीग्रेट वंस मोर अगेन। तो हम लोग अगेन इंटीग्रेट करते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट डीएक्स के टर्म में करते हैं, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग डीएक्स के टर्म में इंटीग्रेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर डीएक्स के टर्म में इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है तुम्हारा वाई आ जाएगा। इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो पी अपॉन 4ei एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यू वाई 3, ए का इंटीग्रेशन आता है ए इंटू एक्स, और अगेन ये इंटीग्रेशन जो है इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा बी, जेड कैपिटल बी। तो ये कर्व जो y इक्वल टू ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व आ जाता है, ठीक है। अब तुम्हें डिफ्लेक्शन कर्व अगर आ जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तुम्हें a और b का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग अभी जो है कैपिटल बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैपिटल बी फाइंड आउट करने के लिए क्या तुम्हारा यूज करना है, क्योंकि ये तुम्हारा सिंपली, ये बीम तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड है, क्योंकि ये बीम सिंपली सपोर्टेड है तो पॉइंट ए पर जो भी क्रॉस सेक्शन है, तो पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन 0 होगा और पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो इसी को तुम्हें यूज करना है। तो पॉइंट ए पर जो ये कर्व जो है तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व है, ये तुम्हारा कलर पिंक कलर जो भी कलर है, वायलेट कलर पता नहीं कौन सा, ठीक, ये कलर जो भी है, तो ये तुम्हारा है तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर डिफ्लेक्शन जो है 0 है, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर, क्योंकि हम लोग इस a से x को मेजर कर रहे हैं, तो इस a पर x की वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो इस चीज को अगर तुम्हें यूज करना है तो इस वाले कर्व में तुम लोग x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे या y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, तो इससे b का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा b इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व तुम्हारा y इक्वल टू pxq डिवाइडेड बाय 12ei प्लस ax, ए तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा रीजन जो है तुम्हारा, जब हम लोग x लाई बिटवीन 0 से लेके l/2 के बीच में लाई करता है, तो हम लोग ये पूरा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप कॉमन प्रोसीजर है, जब हम लोग सेक्शन x लाई बिटवीन l/2, अगेन m का वैल्यू जो है p/2 l माइनस एक्स, अगेन m के जगह पर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम्हारा ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जब x लाई बिटवीन l/2 से लेके l के बीच में। तुम्हें एक बार इंटीग्रेट करते, एक बार इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हो तो स्लोप तुम्हारा आएगा, ये पर्टिकुलर स्लोप का इक्वेशन है। फिर इस एक्सप्रेशन को, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन स्लोप का इक्वेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आएगा। तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आता है। तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, जहां सी और इसे इंटीग्रेट करोगे, इस वाले पूरे, यहाँ पर कुछ लगता है छोटा हुआ, ठीक है। तो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो सी अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और डी भी तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो तुम्हें सी और डी इंटीग्रेशन कांस्टेंट तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो ये पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन कर्व जो है, जब x लाई बिटवीन l/2 से लेके l के बीच में है तो डिफ्लेक्शन कर्व ही है। तो इसका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट बी पर मेरा डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट जहां भी पॉइंट है रोलर सपोर्ट में डिफ्लेक्शन जो है 0 है, तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कैपिटल एल है, तो उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो एल इज एट एक्स इक्वल टू एल, वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में y को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को हम लोग l सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे तुम्हारा एक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोग y के जगह 0 सब्स्टिट्यूट किए, l के जगह x के जगह पर l सब्स्टिट्यूट किए, तो इससे तुम्हारा एक एक्सप्रेशन आता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को
ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आ गया, सी और डी के बीच में रिलेशन है, तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन आ गया। तो अभी तुम्हारे पास तीन अननोन है, सी अननोन है, डी अननोन है, और तुम्हारे पास ए अननोन है। तो तुम्हें किसी भी तरीके से करके तुम्हें तीन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम लोग अभी एक इक्वेशन फाइंड आउट किए, तो अभी तुम्हें दो इक्वेशन और फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उन दो इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक्स जब 0 से लेके L/2 के बीच में लाई करेगा तो तुमने स्लोप कर्व तुमने फाइंड आउट किया। उसी तरीके से डिफ्लेक्शन कर्व तुमने फाइंड आउट किया है जब x 0 से L/2 के बीच में था। जब x L/2 से लेके L के बीच में लाई करता है तुमने स्लोप कर्व फाइंड आउट किया और डिफ्लेक्शन कर्व फाइंड आउट किया, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट x इक्वल टू L/2। तुम्हें पॉइंट्स, जिस पॉइंट पर तुम्हारा पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ही एक्सप्रेशन को तुम्हें फाइंड आउट करना है, दोनों ही, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले स्लोप इक्वेशन से तुम्हें एट x इक्वल टू L/2 पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू L/2 स्लोप का वैल्यू तुम लोग x के जगह पर L/2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये स्लोप का तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ये जब x L/2 से लेके L के बीच में अगर लाई करता है तो ये तुम्हारा इक्वेशन स्लोप का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में तुम्हें x इक्वल टू L/2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इस एक्सप्रेशन से तुम्हारा स्लोप का इक्वेशन आएगा। तो हम लोग x इक्वल टू L/2 पर हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये स्लोप का तुम्हारा इक्वेशन आता है। अब इन दोनों ही, जिससे x इक्वल टू L/2 पर स्लोप जो है, चाहे तुम इस वाले एक्सप्रेशन से आओ चाहे इस वाले एक्सप्रेशन से, स्लोप दोनों ही बराबर होगा। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को तुम्हें इक्वेट कर देना है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को जब इक्वेट कर देते हो तो तुम्हारा, तो पिछले वाले तुमने डिफ्लेक्शन, ये तुम्हारा पहला था इक्वेशन था इस वाले स्लाइड में, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन आता है जब स्लोप को इक्वेट करते हो, ये दूसरा इक्वेशन आता है। थर्ड इक्वेशन के लिए तुम्हें करना क्या है, थर्ड इक्वेशन कैसे आता है वो क्या, थर्ड इक्वेशन में क्या है, x 0 से लेके L/2 में ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व है। तो एट x इक्वल टू L/2 पर तुम्हें डिफ्लेक्शन, इस एक्सप्रेशन से तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से x इक्वल टू L/2 से लेके L के बीच में ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व का इक्वेशन है। तुम्हें इस एक्सप्रेशन से x इक्वल टू L/2 पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें इक्वेट कर देना है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट कर दोगे तो ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन आता है। तो तुम्हारे पास तीन अननोन है, ए सी एंड डी, और तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हारा ए सी और डी तुम्हारा फाइंड आउट होता है। तो जब ए सी और डी अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो तुम्हारे पास स्लोप का इक्वेशन और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन तुम्हारा, ये चारों इक्वेशन, स्लोप जब ए फाइंड आउट कर लोगे तो स्लोप का इक्वेशन आ जाएगा, डिफ्लेक्शन का आ जाएगा। जब सी और डी फाइंड आउट कर लोगे तो तुम्हारा स्लोप का इक्वेशन और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आएगा। जब ये इक्वेशन अगर आ जाता है तो तुम किसी भी पॉइंट पर तुम लोग उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मिड पॉइंट पर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो बस x इक्वल टू L/2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारा स्लोप और डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पर तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कॉमन प्रोसीजर है डबल इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व कर, डबल इंटीग्रेशन से हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम है सिंपली सपोर्टेड बीम का। अब हम लोग एरिया मूवमेंट मेथड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया मूवमेंट मेथड से हम लोग स्लोप का इक्वेशन देखेंगे। थोड़ा सा स्लोप का इक्वेशन में हम लोग इसका जिस तरीके से डेरिवेशन पार्ट ये किए थे तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का, फ्लेक्सुरल फार्मूला का, ये फ्लेक्सुरल फार्मूला का जिस तरीके से मैंने अभी इसका थोड़ा सा प्रूफ दिया है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, उसी तरीके से थोड़ा सा एरिया मोमेंट मेथड में थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करना फायदेमंद रहेगा ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एरिया मूवमेंट मेथड का थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम लोग ए और बी पार्ट करेंगे। तो अभी सिंपली सपोर्टेड बी में तुम्हारा मिड पॉइंट पर मैंने पॉइंट लोड लगाया था। अब उसके बाद ये मिड पॉइंट पर लग के नहीं किसी डिफरेंट पॉइंट पर लगेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
फिर तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर सॉल्व करना है सिंपली सपोर्टेड बीम में, फिर ट्रायंगुलर शेप का करना है, फिर इन पॉइंट आउट पर, और फिर उसके बाद पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और ट्रायंगुलर सबका कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना है। तो सिंपली सपोर्टेड का हम लोग फिर सारे प्रॉब्लम लगभग 5-6 बेसिक प्रॉब्लम जो होते हैं सिंपली सपोर्टेड का चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है तो हम रिपीट कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ। पीपीटी शेयर कर देंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है स्लाइड में तो पूछ सकते हैं। पीपीटी मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो क्लास मेरे पास अभी तक इतना पीपीटी बना हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। तो तुम लोग का कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ऐसे क्लास ओवर है, ठीक है। हाँ हाँ, पूछना है आयुष, आरिश। नो सर। अच्छा, तो क्लास ओवर है, कुछ अगर पूछोगे तो बता सकते हैं, नहीं तो पीपीटी में कुछ अगर पूछना है तो पीपीटी में बता देंगे। अभी टाइम तो है, अभी नहीं, टाइम भी थोड़ा बहुत 15 मिनट है टाइम। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग हम ख़त्म कर रहे हैं।